Hey guys, good morning to all of you and welcome to my lecture Chemistry with Ashish Arora. I believe you people are doing good and it is a beautiful, lovely morning. Am I right or wrong? Yes? Isn't it so? Yes? So, welcome to my lecture. We are starting our lecture. सर आपने कब का चालू कर दिया लेक्चर? Yes, I know I have started back. बट जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे. लास्ट टॉपिक था हम वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. तो उसमें से आज हम जो पढ़ाई करने वाले हैं दैट इज द वन what do we have is elimination reaction. Elimination reaction, these are chemical reaction in which involves the atoms or group of atoms are being removed from the adjacent carbon atom, resulting in formation of multiple bond banta hai. Now, depending upon the position and group of atoms eliminated, we have reclassified them or subclassified them rather say into different following types. So, उसमें से जो पहला वाला है, let us see which one is the first one. The first one which we do have is alpha elimination reaction. What is alpha elimination reaction? Suppose in due to some reason elimination इस तरीके से हो रहा है कि let's say कि ये हमारा living group है और जो हाइड्रोजन एटम भी लीव करता है वो भी वही कार्बन में से लीव करता है जो कार्बन पे लिविंग एटम था. So this elimination reaction involve removal of both the atoms or group of atoms from the same carbon atom and resulting formation of कार्बीन्स बनाता है वो. जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है okay, जैसे कि Cl to HCl or OH minus के presence में then we get dichlorocarbon and these reactions are very rare. That's what we had learned last time. Then beta elimination reaction. Beta elimination reactions involve remove two atoms. दो एटम निकालते हैं बट एडजेसेंट कार्बन एटम में से निकलता है. जैसे कि ये कार्बन एटम में हमारा एक लिविंग ग्रुप था ब्रोमीन, उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके बाद जो वाले को बीटा बोलते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस वी हैव लर्न दिस, डू यू रिमेंबर जो हम लोगों ने देखा था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन इन आवर चैप्टर कॉल्ड हेलोअल्केन हेलोरिन. तो अल्कोहलिक के OH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर एंड द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन एंड ड्यू टू दैट व्हाट डू वी गेट इज डबल बॉन्ड अल्कीन मिलता है यहाँ पे एंड HBr इज रिमूव्ड. दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन reaction. Correct. Now, if we continue further, another example यहाँ पे दे रखा है. Generally, what do we write is over here. The halogen or the living group is to the one carbon atom, which we call alpha, and the nearest one is called beta, and hydrogen is removed from the beta carbon atom, and what we get is alkene over here. However, if you see the analogy of the substitution reaction, along with the beta elimination reaction can be divided in two types. जैसे हमारा substitution reaction SN1 and SN2 था. Similar analogy we are going to apply over here. E1 मतलब elimination unimolecular होगा, E2 मतलब elimination bimolecular reaction होगा. Now ये थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, जरा ध्यान से समझेंगे हम. एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें यहाँ पे बताया गया हुआ है even reactions are completed in two steps. जैसे SN1 रिएक्शन भी two step में होता था वैसे ही even reaction भी दो step में होता है and at that time the rate of reaction depends only on the concentration of substrate. जैसे SN1 में होता था वैसे ही इसमें भी सेम the first step उसी तरीके से होगा. यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होता है वो पहले निकल जाता है. हमारे पास सपोज यहाँ पे हेलो अल्केन है, में से फर्स्ट स्टेप में ये निकल जाता है and we what do we get is carbocation मिलता है. What do we get is carbocation. बराबर है कि नहीं? Are you getting? And which is a slow, being a slow step, it is going to be rate determining step. It's going to be rate determining step, and that's why rate depends upon only on the substrate that is hello alkane. उसी के ऊपर proportional है. That's why it's called even reaction. That was the step 1. Step 2 में क्या होने वाला है? Step 2 में एक बार कार्बोकेटाइन मिल गया, then न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे रहेगा वो H को अटैक कर लेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा and what do you get is double bend. तो यहाँ पे presence of न्यूक्लियोफाइल. अभी न्यूक्लियोफाइल की जगह पे I will use the word base. बेस वर्ड यूज करना बहुत ज्यादा. एक्चुअली मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को समझा रहा था न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम एक ही है.
they are supposed to donate a pair of electron. न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बेस भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बट न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस और बेस का डिफरेंस ये, न्यूक्लियोफाइल नॉर्मली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इट मेक्स अ बॉन्ड विद कार्बन एंड वो अटैच हो जाता है रिएजेंट यानी कि सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। वेयर इज बेस की अगर हम बात करते हैं, इट नॉर्मली बॉन्ड बनाता है H प्लस के साथ एंड सबस्ट्रेट के साथ वो बॉन्ड बनाता नहीं है एंड H प्लस निकालता है, जैसे कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया। तो जो नॉर्मली स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं जिसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में रहेगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, बराबर है कि नहीं। तो ये एक डिफरेंस हमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है एंड काफी कंफ्यूजिंग डिफरेंस लगता है स्टूडेंट्स को, कई बार दे गेट कंफ्यूज बिकॉज उसके पास यहाँ पे एसएन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, स्टूडेंट्स को वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है समझने के लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि भाई ये एक बेस एंड न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस अगर आपको समझ में आएगा तो ही वो आगे समझ में आएगा। हियर again coming back to our elimination reaction, it must be noted that since carbonium ion intermediate is involved in even reaction, hence these are accompanied by the rearrangement. What is possible? तो नॉर्मली जहाँ पे कार्बोनियम आयन अगर स्ट्रॉन्ग बनता है, स्टेबल बनता है, टर्सरी कार्बोकेटायन जहाँ पे भी मम्मी वहाँ कोई ना फोन चले जा, स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। यस See what is happening? So we need to understand that point and we'll continue further. बराबर है कि नहीं? So मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। It must be noted that since carbonium ion intermediate is involved in elimination reaction, hence they are accompanied by the rearrangement also wherever is possible. Carbocation जहाँ पे भी बनता है. It may be noted that carbocation and intermediate formed in the first step is almost similar to the SN1. SN1 में भी सेम चीज हो रहा था, हेलो अल्केन है, वहां पे भी हेलोजन बाहर निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है, E1 में भी कार्बोकेटायन बनता है। So if the nucleophile which is a base in the second step gets added to the carbonium ion, we get SN1 reaction. Base अगर add हो जाएगा then SN1 बनेगा, then elimination नहीं बनता है। So SN1 and elimination reaction takes place simultaneously. ये चीज जरा ध्यान से समझते हैं, मैं यहाँ पे आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा, जस्ट अ मिनट। हम यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं आपको कि नॉर्मली अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है एंड लेट्स से कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, सो चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे एलिमिनेशन 1 रिएक्शन हो, दोनों में एक चीज तो कॉमन है। फर्स्ट थिंग, दोनों में ये होने ही वाली है, कार्बोकेटायन बनता ही है, दोनों में एक ही चीज है। फर्स्ट स्टेप इज सेम बट सेकंड स्टेप डिपेंड रहता है। एक ही मिनट रुकना बेटा, आई गेस सॉरी फॉर दैट। सी दिस स्टेप इज कॉमन एंड द सेकंड स्टेप पे डिपेंडेंट रहता है कि जो हमारा ये कार्बोकेटायन आया वो कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल जो लग रहा है या तो बेस लग रहा है, दो में से कोई भी होगा। अगर बेस होगा देन वो अल्कीन बनाएगा एंड अगर बेस नहीं है, न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो बेस बट वीकर बेस है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था बेस के बीच और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, उसका बेस की कैपेसिटी वीकर है, देन एसएन रिएक्शन होगा, यहाँ पे E1 रिएक्शन होगा और आपको एडिशन वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है, बट यहाँ पे अल्कीन मिलता है। मतलब SN1 reaction and elimination reaction goes hand to hand together. They are simultaneously they are going to take place. डिफरेंस खाली एक ही चीज का है कि सेकंड स्टेप में कौन है आपके पास, मतलब न्यूक्लियोफाइल है या बेस है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब मैंने बताया था which normally easily attach with the carbon, and this easily attaches with hydrogen. Easily attaches with hydrogen, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस।
मैं थोड़े से एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी, बट आई जस्ट वांटेड टू राइट डाउन द दिस थिंग बिकॉज ये जेडब्ल्यू नीट में सबसे एक डिफिकल्ट टॉपिक में से है कि स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं इसके आंसर देने में। द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड E1, आई वांट यू टू नोट डाउन दिस एंड आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद चेक बॉक्स में आप मुझे लिखोगे डन। अभी टॉपिक बाकी है इसलिए मुझे मत बोलना कि समझ में नहीं आया, मैं कंटिन्यूएशन में जा रहा हूं, बट बिफोर आई गोइंग टू रिमूव दिस आई वांट यू टू राइट डाउन दिस मच, आप इतना लिख लीजिए। Guys, have you written it? Okay guys, अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। पूनम बेन, મને આ બધા સ્ટુડન્ટ લિસ્ટ મોકલજો જે લોકોને તમે ફોન કરવા પડ્યા। See over here, if we continue further, यहाँ पे ये पॉइंट पे आके मैं आया था, मैंने व्हाट्सएप कर चुका। सो देखो यहाँ पे, इफ द लिविंग ग्रुप इज एट सेकेंडरी और टर्सरी पोजीशन, मतलब जो लिविंग ग्रुप हैलोजन है या तो देन बोलते, यहाँ पे लिखा है even reaction is favored whereas if living group is at primary position SN1 reaction is favored। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, नॉर्मली दोनों होते हैं, E1 एंड SN1 रिएक्शन दोनों होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इलेबरेट करूंगा और हम शायद आई थिंक सो हमारी टेक्स्ट बुक में ये सब टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक्स नहीं बताया गया। यहाँ पे ये वाली चीज मैंने एक समराइज करके किसी बुक में से लिखी हुई है, आई वांट यू टू राइट डाउन दैट, बट बिफोर दैट लेट मी रिमूव दिस, ये वाला पार्ट जिसको मैं अभी हाईलाइट करूंगा। वी कैन समराइज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समरी लिख लो पहले, मैं समझाता हूँ। आई वांट यू टू राइट डाउन दिस समरी। वी कैन समराइज द बिहेवियर ऑफ टर्सरी हेलो अल्केन्स एज फॉलो। Then I'll explain you. First, write down this much. लिखने के बाद आप लोग रिटर्न ऐसा लिखोगे, you have to write down and you have to write written. Has everyone written it? Good. Okay, guys. Abhi, let me explain you this point.
Okay, this is not from our book, so I'm going to explain you this. Right now I'm on the Google पे मैं एक बुक के अंदर देख रहा था एक टॉपिक कि मुझे आपको समझाना था. देखो यहाँ पे जो पॉइंट बता रहे हैं हमें, टर्सरी हेलो अल्केन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली बाय SN1 मैकेनिज्म. टर्सरी अगर होगा तो वो SN1 रिएक्शन ही रहेगा. SN2 रिएक्शन नहीं होता है टर्सरी में. वी नो अबाउट दैट, वी हैव लर्नड इट इन मच डिटेल अर्लियर, but right now we are going to compare SN1 and E1. However, a tertiary haloalkane can undergo also an elimination reaction either by E2 or E1. उसमें भी E2 और E1 दोनों प्रोसीजर होती है. Now it depends. उसकी मैकेनिज्म अगर हम डिटेल में देखते हैं, the mechanism depends on the basicity of the nucleophile and the polarity of the solvent. solvent की polarity कितनी है, basicity nucleophile की कितनी है, वो सब चीजों पर डिपेंड रहती है. Now these are the on a higher level study है, तो polarity और सब कुछ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट JEE नीट में थोड़ा सा हम ये डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी पे डिपेंड रहता है. सो सपोज इफ द न्यूक्लियोफाइल इज अ वीक बेस, मैंने आपको बताया बेस का मतलब क्या है, देन SN1 एंड E1 प्रोसेस होगा और उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है. And the amounts of the two types of products depend only on the stability of carbocation that forms as an intermediate. For an example, यहाँ पे हमें दिया गया है एक टर्सरी वाला 2-bromo-2-methyl butane दे रखा है, और अगर आप उसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हो, सी हमारा यहाँ पे इथेनॉल जो है वो न्यूक्लियोफाइल या तो बेस की तरह रिएक्ट करेगा. It gives 64% of product. तो जरा ध्यान से समझते हैं, 64% ऑफ दिस, ये जो इथेनॉल है उसमें से CH3CH2O- वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा इसमें, एंड वो यहाँ पे ब्रोमीन को निकाल दिया और ब्रोमीन की जगह पे खुद जुड़ गया, मतलब ईथर बनाता है. कैन यू सी दैट? बट वो 64% ही मिल रहा है. SN1 प्रोडक्ट इज मेजर ओवर हियर बिकॉज दिस इज वीक बेस. इथेनॉल इज वीक बेस, तो यहाँ पे सिंस इट इज बेस है लेकिन वीक बेस है, so उसकी वजह से आपको SN1 मिल रहा है. बट E1 तो जरूर मिलेगा. E1 में क्या होता है, Br भी निकलता है और ये कार्बन में से, यानी कि बीटा कार्बन में से, ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा में से एक हाइड्रोजन भी निकलता है, बीटा में से हाइड्रोजन भी निकलता है, उसमें भी 2 प्रोडक्ट मिलेगी आपको E1 की. बट 36% आपको E1 से मिल रहा है और अल्कीन मिल रहा है. एंड क्या मिल रहा है आपको, अल्कीन मिल रहा है. कब ये मिला, when we are going to use ethanol over here. but the same reaction जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, instead of using ethanol, वापस हमारा जो रिएक्टेंट था वही ले रखा है हमने, 2-bromobutane. इथेनॉल की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू यूज सोडियम इथोक्साइड. सोडियम इथोक्साइड का मतलब हो गया CH3CH2ONA. CH3CH2ONA. CH3CH2ONA में से सिंस यहाँ पे Na+ है, ये Na+ है और ये नेगेटिव चार्ज है. ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर जब इथेनॉल था तब CH3C और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग था, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग था, देन इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल. बट यहाँ पे नेगेटिव एनायन एंड केटायन है, एनायन एंड केटायन है, देन इट वो इज गोइंग टू अटैक द H+, वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, a strongly basic nucleophile. Can you see that? Sodium ethoxide is a strongly basic nucleophile, is added to ethanol and E2 reaction completes. उस टाइम पे E2 रिएक्शन ज्यादा होगा, आपको SN1 भी मिलता है, ईथर मिला, बट इस बार खाली 18% मिला, एंड यहाँ पे ये ज्यादा मिल रहा है. यहाँ पे तो बता रहे हैं कि 93% ऑफ द मिक्सचर आपको एलिमिनेशन मिलता है, ओनली 7% इज ईथर प्रोडक्ट. नीचे कुछ और लिखा हुआ है, बट ठीक है, हम परसेंटेज पे नहीं जाएंगे, खाली हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब आप इसको चेंज कर रहे हो. 2 मिनट बेटा चैट बॉक्स में कुछ मत लिखिए, लेट मी फिनिश द टॉपिक. जब आप इथेनॉल ले रहे हो या सोडियम इथोक्साइड ले रहे हो, फर्क है उसमें. सोडियम इथोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस. व्हेनेवर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस, then देखो यहाँ पे नीचे लिखा होता है कंक्लूजन, if the nucleophile is a strong base then theory haloalkanes reacted by either SN1 or E2 mechanism. यहाँ पे E2 होगा, E2 मेरा अभी सिखाना बाकी है, डोंट वरी, बट मैं आपको खाली डिफरेंस दिखा रहा हूँ एलिमिनेशन है उसके बीच में, एंड E2 रिएक्शन इज फेवर्ड. बट अगर वीक बेस है देन SN1 एंड E1 होता है एंड SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड.
क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो आप लोग हाँ या ना बोल सकते हो, बराबर है कि नहीं? यस पूनम बेन, यू मे लीव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डू रिमेम्बर स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन इसमें होता है, तो उसकी वजह से मैंने आपको ये टॉपिक डिटेल में सिखाया, दूसरी बुक में से भी देखा। एंड आई वांट यू टू राइट डाउन दिस। अगर आप दोनों रिएक्शन लिख ले तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आई थिंक सो यू शुड राइट इट डाउन। और ये जो है ना हमारी जो एमटीजी की बुक है, उसके साथ आप ये चिपका दोगे ये रिएक्शन। आई वांट टू राइट डाउन दिस टू रिएक्शन, दिस वन एंड दिस वन। एंड इसके ऊपर एम्फेसिस यहाँ पे लिख देना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बाकी सब में लिखो चलेगा। और ये वीक बेस है। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस, प्रेजेंस ऑफ NaOH, प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड आप लिख सकते हो। आई वांट टू राइट डाउन दिस एंड देन लिखो डन, देन लिखो डन। क्या आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ओके गुड। सो लेट्स गो बैक टू अवर टॉपिक जहां पे हम लोग थे। चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और आई वाज हियर। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, सी हमारी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है, if the substitution reaction is favored by the presence of good nucleophile, that means electron pair donors towards the electron deficient carbon, कार्बन के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, and a strong base होगा, that means electron pair donors towards the hydrogen, favors elimination reaction by removing proton and carbonium ion. For example, acid catalyzed dehydration of alcohol। यहाँ पे दे रखा है कि अगर एसिड की प्रेजेंस में आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हो, देन अगेन वो यहाँ पे आपको बीटा एलिमिनेशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? बीटा एलिमिनेशन। एंड अनदर एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, अगेन देखो स्ट्रॉन्ग बेस लिया है OH माइनस, तो OH माइनस बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस एंड हेलो अल्केन है आपके पास, तो डिहाइड्रेशन करते हो। नॉर्मली याद रखना, सिंस E1 follows the SN1, the tertiary, secondary and primary order of reactivity can be explained on the basis stability of carbonium, because इसमें कार्बोनियम केटायन बनता है, तो टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी में ही आपको मिलने वाला है E1। तो E1 के लिए आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, अदरवाइज SN1 हो सकता है या तो E1 भी हो सकता है। दोनों नॉर्मली साइमल्टेनियसली होते हैं, लेकिन कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा वो हम देखते हैं। नाउ अनदर एक चीज हमें जो बता रखी है, ये है इवन सीबी। इवन का और डिटेल में जा रहा है। इवन सीबी में जैसे अभी हमने किया था ना इथोक्साइड वाला, जो एलिमिनेशन हुआ था सोडियम इथोक्साइड वाला, सोडियम इथोक्साइड में दिस इज अ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ H+ बाय स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम इथोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इथोक्साइड जो मिला था तो वो पहले H+ को निकाल देता है, और H+ को जब निकालता है तब आपको यहाँ पे याद रखना मैकेनिज्म के अंदर you get carb anion। what do you get is carb anion, and then वो काफी अनस्टेबल रहता है। काफी अनस्टेबल होने की वजह से Br यहाँ से निकल जाएगा, and what you get is अल्कीन हो गया, Br माइनस बाहर निकल गया। so इसको even Cb रिएक्शन कहते हैं, which ultimately loses the living group to form अल्कीन। तो ये एक even Cb रिएक्शन है। and again since the rate of reaction depends only on the, इसमें क्या है कि सेकंड स्टेप स्लो है, this step being slow, तो इसके पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहता है। सो कार्बेनाइन पे, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड इवन सीबी। इवन सीबी का मतलब हो गया यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। ये इवन का एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन था, और डिटेल में हम गए। Then we are going for the E2 reactions, E2 elimination। E2 elimination SN2 जैसा ही रखता है। SN2 में हमारा क्या था कि अल्काइल हैलाइड था और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था exactly opposite से, and what we have got is intermediate मिला था, and then halogen बाहर चला गया था, and nucleophilic addition हुआ था। That's what we had learned earlier। That's what we had learned earlier। तो इसमें भी ऐसा ही है, E2 elimination में यहाँ पे बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगा हेलो अल्केन पे, और
एट द सेम टाइम दोनों के दोनों हेलोजन यहां से निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहां से बेस के साथ निकल जाए, यू गेट अल्कीन. So that's the E2 reaction. So base abstracts a proton from the beta carbon and simultaneously living group departs from the alpha carbon. दोनों parallel चलते हैं and what you get is alkene. This is called E2 reaction. बराबर है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर, एक ही मिनट जा रहा है. हाँ बेटा, हाँ खोलो जो बेटा. आयन अपने व्हीकल नीचे खोलते हैं, चाबी बोल रहा हूँ यहीं से खोलते. देख मिला उस तरफ, वहां पे देख, रिमोट के बाजू में कहीं पे भी है, या मैंने ऊपर लगा दी, देख वहां पे. हाय बेटा, मॉर्निंग बेटा, खोल दे यहाँ से, खोल दे. Okay, we'll continue further. So, since E2 reactions do not proceed through an intermediate, rearrangements are not seen in E2 reactions. इसमें rearrangement नहीं होगा, उसमें rearrangement होता है क्योंकि उसमें एक intermediate बनता है, cation बनता है E1 में. इसमें cation ने ऐसा कुछ बना ही नहीं, एक ही स्टेप में हुआ. Order of alkyl halides towards E2, इसमें भी dehydrogenation याद रखना, tertiary, secondary, primary है. And the rate of cleavage, ये जो हेलोजन बॉन्ड कितना इजीली निकलता है उसके बेस पे रहेगा. तो आयोडीन में ज्यादा रहेगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड जैसे हमारा SN में होता था वैसे. बट फर्क खाली इतना है, दोनों में टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हमें याद रखना है कि भाई वो E2 रहेगा. और डिटेल में हमें नहीं पता है E2 के बारे में, तो आगे जाएंगे. बट स्ट्रॉन्गर बेस नॉर्मली E2 पे जाता है. In the case of dehydrohalogenation of alkyl halide, if more than one type of alkene is possible, तो we know Sedgwick rule हमें यूज करना है. Sedgwick rule में जैसे कि यहाँ पे था ब्रोमीन से, तो आपको दो पॉसिबिलिटी मिलती थी, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकले या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकले. तो Sedgwick rule फॉलो होता है एंड वी गेट Sedgwick rule में मोर अल्काइल ग्रुप मिलने चाहिए, ब्यूट मिलना चाहिए एंड ब्यूट कम मिलता है. वी हैव लर्नड अबाउट इट. गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग हाँ बोलोगे, बाकी ना बोलोगे. Okay guys, we'll continue further. The last one which we do have in elimination is gamma elimination. Gamma elimination में क्या हो रहा है? These are the elimination reaction जो normally अल्फा एंड बीटा पे होता था. जैसे कि ये कार्बन था हमारे पास, यहाँ पे हेलोजन है या तो कोई लिविंग ग्रुप है एंड बाजू वाले हाइड्रोजन में से, बाजू वाले कार्बन में से हाइड्रोजन निकलता था बीटा हाइड्रोजन में, वो था हमारा बीटा एलिमिनेशन. बट अभी हम सीख रहे हैं गामा. अल्फा में तो सेम कार्बन पे ही हुआ, बीटा में यहाँ पे होगा था वो देखा. गामा में 1 2 3 ये अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप है, बीटा कार्बन है एंड गामा, गामा मतलब थर्ड कार्बन, उस पे भी एक लिविंग ग्रुप है. अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हो तो ये दोनों चले जाएंगे एंड यू विल गेट ए न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड ओवर हियर एंड साइक्लोप्रोपेन मिलता है. So these are the elimination reactions in which two atoms groups are lost from gamma carbon atoms, leading to the formation of three-membered ring. तीन मेंबर की रिंग वाला बनाते हैं. So normally तीन मेंबर रिंग बनाने के लिए ये वाले रिएक्शन को एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है. बराबर है? गामा वाला समझ में आया तो आप लोग लिखोगे यस, अदरवाइज लिखोगे नो. We'll continue further. You guys are doing good. So अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे साथ वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. रीअरेंजमेंट रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, जरा समझते हो. These are the chemical reactions in which the organic molecules they get rearranged by migration of
एटम का माइग्रेशन होगा या तो ग्रुप ऑफ एटम का माइग्रेशन होगा फ्रॉम वन कार्बन एटम टू द अदर कार्बन एटम, या तो किसी और एक एटम से दूसरे पे फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अमोनियम साइनाइड, अगर आप उसको हीट करते हो तो आपको मिल रहा है यूरिया। तो आप जरा ध्यान से समझो तो पता चलेगा एक्चुअली अमोनियम साइनाइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसमें इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NH4 प्लस एंड CnO माइनस, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। इसके बीच में क्या बनता है? बॉन्ड। एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी अलग ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड अलग तरीके से रहता है। बट जब आप उसको हीट करते हो तो होगा क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, और दो हाइड्रोजन ट्रांसफर माइग्रेट हो रहे हैं NH2 के पास, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड बन चुका है। सो ड्यूरिंग दिस रीअरेंजमेंट होता है। अभी हमें डिटेल में ये नहीं सीखना है कि क्यों रीअरेंजमेंट हुआ, किस लिए यहाँ से यहाँ पे गया, वो नहीं सीखना है। व्हाट वी आर राइट नाउ लर्निंग इज, भाई अगर एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं तो उसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। वी डोंट नीड टू स्टडी बिकॉज दैट्स नॉट इन आवर सिलेबस, बट रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है वो जरा समझ रहे हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन ये वाला है। देन अनदर रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो हमने काफी बार आपको सिखाया हुआ है कि भाई ड्यूरिंग मैकेनिज्म, चाहे वो SN1 मैकेनिज्म हो चाहे E1 मैकेनिज्म हो, दोनों मैकेनिज्म में अगर आपको इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मिलता है which is a primary carbocation as you can see over here, and there is a possibility that it can convert into the tertiary carbocation, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है तो शिफ्ट हो जाता है, ये CH3 यहाँ पे चला जाएगा, कार्बोकेटायन इस तरफ जाएगा, and what do you get is उसको okay, we will call it primary carbocation has rearranged to more stable tertiary carbocation या sometimes secondary carbocation में, तो मिथाइल शिफ्ट हुआ, that is called कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन शिफ्ट वाला रिएक्शन है, ये भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। बराबर, रीअरेंजमेंट समझ में आया। देन वी आर गोइंग टू सी द अदर वन। समझ में आया तो आप लोग लिखोगे यस, अदरवाइज लिखोगे, आप लोग हाँ लिखोगे, अदरवाइज लिखोगे ना। Guys, you people are doing good. Very good. यस बेटा, दैट्स बॉन्ड्स भी टूटते हैं, नए नए बॉन्ड्स बनते हैं, और रीअरेंजमेंट पूरा एटम का होगा तो बॉन्ड तो टूटना जरूरी है। बराबर है दैट्स ओके गाइस, वी विल कंटिन्यू फर्दर। These are the chemical reactions in which involve interconversion of one isomer into another. For an example, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, इसमें आइसोमर हो गए, जैसे कि हमारे पास ट्रांसब्यूटोइन था, वी नो व्हाट इज ट्रांसब्यूटोइन। अगर आप उसको सनलाइट के प्रेजेंस में उसको हीट करते हो, फोटोन लाइट के प्रेजेंस में, इट कन्वर्ट्स इनटू CH3 ब्यूटेन, सिंस ब्यूटेन इट इज अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन ओनली, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज हो रही है। या तो फिर वन ब्रोमोब्यूटेन को अगर आप एनहाइड्रस सेल के साथ हीट कर रहे हो तो टू ब्रोमोब्यूटेन मिल रहा है, इट इज आल्सो काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट, बट आपको आइसोमर्स ही मिल रहे हैं, ऊपर वाले में आइसोमर्स नहीं थे, यहाँ पे कुछ और चीज है। देन वी हैव पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में ऐसा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज सिंगल स्टेप के थ्रू मिलते हैं एंड साइक्लिक ट्रांजिशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, एक काफी फेमस रिएक्शन है डाइल्स अडार का, अल्डर का, उसमें 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। 4+2 का मतलब उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम थी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 2 पाई है और ये 4 पाई है। एक डबल बॉन्ड बताया हुआ है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड बताया हुआ है। जब रिएक्शन करते हैं तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये वाला यहाँ पे बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस। आर यू गेटिंग दैट? तो आपको साइक्लिक कंपाउंड बन गया है यहाँ पे। एक्चुअली ये जो था इसको आप ब्यूट 1,3 डाइन भी लिख सकते हो अगर कंपाउंड में देखते हो तो। ये था आपके पास एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं जिसको, ये यानी कि विनाइल साइनाइड था, दिस वाज विनाइल साइनाइड। उसका रिएक्शन हुआ एंड आपको 4+2 से बनके ये वाला कंपाउंड मिल रहा है। अनदर एग्जांपल, ये थोड़ा इजी है, ये इजीली समझ में आएगा आपको।
यहाँ पे अनदर एग्जांपल इज साइक्लो एडिशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स। आपके पास दो इथीन मॉलिक्यूल है, उसका एडिशन करो, लेकिन इस बार पॉलीइथीन नहीं बना रहे हो, साइक्लोब्यूटेन बना रहे हो। ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड, मतलब आप साइक्लिक कंपाउंड्स बना रहे हो। आपको यहाँ तक की थियरी समझ में आई? समझ में आई तो आप लिखोगे यस, अदरवाइज लिखोगे नो। ओके गाइस, व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर हियर? ध्यान से समझना। वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस। मैं एक्चुअली ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, इसको स्टॉप करूंगा एंड नेक्स्ट टॉपिक में इसके एमसीक्यूज में करवा रहा हूँ, तो इसको मैं जरा स्टॉप कर देता हूँ एंड